Hello. એક મે મોઢામાં ખાલી હોય ને આખું પ્રોગ્રામ ગમે જોશે Hello. Good morning, everybody. Hello. Good morning, Bhakti. Good morning. Good morning, everybody. We'll start our program in just like 1 minute. We wait for 1 minute for other people to join us. Hello, hope you're doing well on Sunday morning, and I welcome you all for this beautiful, wonderful session. Hello, hello. બધા video on રાખે તો મને મોઢા દેખાશે. Keep yourself mute, but you can show me a beautiful face. Thank you. Hello, hello girls, hello ladies, hello guys. So it is 9 o'clock and 6 minutes. I should start the program. I'm going to put everybody on mute. હું ગુજરાતી ઇંગ્લિશ ભાષાનો મિક્સ પ્રયોગ કરીશ. Okay. So, good morning, everybody. Namaste. Let's start today's program by 3 ओंकार. आंखें बंद करके. Thank you for joining me. Myself, I'm Bhakti Shah from Ahmedabad, and I'm a yoga teacher, therapist, and run a yoga studio.
I'm also into many other alternative healing therapies, and Joint Secretary for Indian Yoga Association, Gujarat chapter. So Indian Yoga Association Gujarat chapter is celebrating with Rotaract Club Ahmedabad Vasna. And both together are presenting this beautiful session for today. And the session is on yoga and health. Okay. Let me give a brief idea about Rotaract Club Vasna and Rotaract in general. Self-development through fellowship and service. Rotaract Club Ahmedabad Vasna thankful and grateful to collaborate with IYA to celebrate Women's Day. RC Vasna focuses on the development of young adults as leaders in their communities and workplaces. Rotaract Club Ahmedabad Vasna works on avenues like community service, club service, international service, professional development, entrepreneurship development, sports development, and Rotaract Club Ahmedabad Vasna undertakes various projects of overall development of their members as well as society. We adopt more than 32 children to help them in education who lost their parents in COVID. Isn't it wonderful? Such a nice gesture and such a wonderful cause they are working on. So we are, on behalf of IYA Gujarat, I'm really thankful for joining hands with us. IYA India is a national platform. IYA is a middle attempt to unite the yoga parameters in a common cause. Indian Yoga Association is committed to promotion and advocate of yoga and its applications around the world, and industry cum self-regulatory body to facilitate activities of members and institutions. IYA India is the platform in which the renowned and ऐसे बोल सकते हैं कि इंडिया के बड़े बड़े गुरु के लाइक यू नो अंडर उसके रूफ के नीचे चल रहा है, जैसे रामदेव बाबा जी है, श्री श्री रविशंकर जी है, दाजी है, सदगुरु जी है. सो उनके गाइडेंस के नीचे पूरा प्लेटफॉर्म चल रहा है. एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म under IYA India, IYA Gujarat, we are working. So thank you very much. I would wish nobody to leave the meeting and just attend till end, because we have a lot of surprises and lot of things for you, along with two beautiful and prominent speakers. We have also games for you and a beautiful ending session also. Yatra naryestu pujyante ramante tatra devata. જ્યાં જ્યાં નારીની પૂજા થાય છે ત્યાં ત્યાં દેવતાનો વાસ રહે છે. આ ભાવનાથી ભારતને સદીઓ પૂર્વે સ્ત્રી સન્માનનો આદર્શ મૂર્તિમંત બન્યો હતો. સતીઓ, સન્નારીઓ અને સાધ્વીનો એક જ્વલંત ઇતિહાસ ભારત જગતને પૂરો પાડ્યો છે. વેદ ઉપનિષદ કાળમાં સ્ત્રી પુરુષનો સમાન દરજ્જો હતો. એટલું જ નહીં, ગાર્ગી, લોપામુદ્રા, વિદુષીઓએ સ્ત્રી શક્તિના પ્રભાવને પૂર્ણ કળાએ પ્રગટાવ્યો હતો. બુદ્ધ કાળમાં અને વિશેષ કરીને જૈન કાળમાં તો સ્ત્રી પુરુષની બરાબરીના નાતે આધ્યાત્મિક અધિકાર પણ પામી હતી. So this is the glory of our culture. The theme of International Women's Day 2022 is Gender Equality Today for Sustainable Tomorrow, recognizing the contributions of women
and girls around the world who are leading the charge of climate change, adaptation, mitigation, and response to build a more sustainable future for all. So, 8th is the day we celebrate Women's Day around the world. But because today is Sunday, we have chosen this day so maximum people can take advantage and join us. So we have two speakers, Dr. Punita Acharya ji and Mauli Baviskar. We start with our first speaker, Dr. Punita Acharya. She is an eminent Ayurvedacharya and Yogacharya, practicing for past 3 decades. She is a founder director of International Alliance of Yoga Therapists India Foundation. Without wasting any time, I would just hand over our guest speaker first, Dr. Punita Acharya, to speak on the subject आयुर्वेद में स्त्री स्वास्थ्य और शक्ति का रहस्य. Welcome, Punita ji. I will unmute you. You can unmute yourself. Okay, yes. Okay. Namaste to all of you. 1 minute. I will just try to. IAYA और रोटरी क्लब ने मुझे ये मंच पर आमंत्रित करके मैं बहुत आभारी हूँ. और आज का जो सब्जेक्ट है हमारा आयुर्वेद और स्त्री के विषय में जो मुझे बात करनी है आप लोगों से. आयुर्वेद और स्त्री ये दोनों बहुत गहन विषय है, तो उसके बारे में हम जितनी बात करें वो कम है. फिर भी मेरी यहाँ कोशिश जरूर रहेगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा थोड़ा बहुत ज्ञान दे सकूं, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे सकूं कि आयुर्वेद क्या काम करता है यहाँ पर. तो सबसे पहले स्त्री व्यक्तिगत एवं समग्र संसार की उपादान का कारण है और स्त्री से ही संसार की उत्पत्ति होती है. उपादान कारण और संसार की उपादान कारण की शक्ति योग संसारिक कारण की क्षति योग के अंदर उभर के बाहर आती है. मतलब स्त्री के अंदर जो क्षतियां पैदा होती है वो संसार में आती है. तो ये न हो इसके लिए बहुत अपने जो प्राचीन जो ऋषि मुनि है और जो आयुर्वेद शास्त्र है उसके अंतर्गत जो उपाय बताए हैं वो है, उपाय का नाम मतलब जो उपाय को हम बोल सकते हैं स्त्री सामर्थ्य. तो स्त्री सामर्थ्य के लिए जो हर एक स्त्री सामर्थ्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऋषि मुनियों ने पहले बताया है कि अपने हर एक व्यक्ति के अंदर एक शक्ति विद्यमान होती है. हर एक व्यक्ति के अंदर एक शक्ति होती है. वो जो आज के युग में जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोल सकते हैं, जो देन ये स्त्री को ये देन है, संसार के अंदर ये स्त्री को देन है. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम कहते हैं वो डीएनए, उसका खुद का डीएनए होता है. अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो डीएनए है उसके अंदर क्षति आती है, उसके अंदर जो कमियां आती है वो निरंतर युगों तक वो चलती आती रहती है और उसके कारण संसार के अंदर वो क्षति आती है. तो योग और आयुर्वेद में ऐसा बोलते हैं कि स्त्री को जो हर एक चीज जो मिलने वाली है वो संसार में स्वस्थ, निर्मल और अच्छी, मतलब उसको उत्तम चीजें प्राप्त होनी चाहिए. अगर उसको ये सब चीजें अच्छे से प्राप्त नहीं हो तो उसका दूसरा सीधा कारण ये हम कह सकते हैं कि अगर स्त्री के जीवन में उसको जो उसके अंदर जो मल शुद्धि, अशुद्धि, अंतराय, मानसिक क्लेश जो होते हैं, अगर वो क्लेश उसके अंदर हो तो वो ऑटोमेटिकली वो डीएनए में आते हैं और वो संसार के अंदर वो उभर के बाहर की तरफ आते हैं. वो साइकिल चलता ही रहता है. तो दूसरी तरह से हम समझते हैं तो जैसे पुरुष का अगर स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसकी एक जनरेशन मतलब वीक होती है, पर अगर जो स्त्री का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसके आने वाली कई पीढ़ियां बिगड़ती है, उसकी स्वास्थ्य बिगड़ता है, आने वाली कई पीढ़ियों का स्वास्थ्य बिगड़ता है.
तो आयुर्वेद यहाँ ये हमको समझाता है कि योग और आयुर्वेद के अंदर जो हमें बताया है, तो उसके अंदर हमको अपने स्वस्थ व्रत का पालन, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सारी जो चर्या जो बोले हैं, वो सारी हमें पालन करना है इसका। पर वो हम कैसे पालन करेंगे? जब हमको सही उसका ज्ञान हो, तभी हम पालन करेंगे। आज के युग से जो नारी गुजर रही है, वो बाहरी और अंदरी दोनों तरफ से तनाव से गुजर रही है, और उसके कारण उसके हार्मोन्स वीक होते जा रहे हैं। डे बाय डे धीरे 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 उसके हार्मोन्स वीक होते जा रहे हैं। उसको पीरियडिक जो साइकिल, जो मंथली साइकिल है, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जो पहले के जमाने में इतने नहीं होते थे। अभी जो देखा जाए तो फूड से लेके सब, फूड, लाइफस्टाइल, ये सारे जो हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके कारण उसके बीच की धीरे धीरे क्वालिटी जो है उसकी वीक होती जा रही है। तो हमें ये समझना है कि उसको अगर हम ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्त्री को रजस वाला परिचर्या, आयुर्वेद के अंदर जो बताया है, रजस वाला परिचर्या से रजन निवृत्ति परिचर्या, मतलब उसके अंदर प्यूबर्टी से लेके गर्भधारण, मेनार्की, जो इसको रजस वाला बोलते हैं, रजस वाला परिचर्या, गर्भधान संस्कार, प्रसूति सुति का परिचर्या, पोस्ट मेनोपॉजल, जैसे मतलब कि रजन निवृत्ति काल के दरमियान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा वर्णन ऋषि और मुनि ने 5000 साल पहले कर दिया है। तो सोचो उनको कैसे ख्याल होगा कि ये आने वाली पीढ़ियों में ये शायद जो बीज की दृष्टि धीरे धीरे बनती जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने बहुत पहले से जो सारा बताया है, तो हमें ये पालन करना चाहिए, योग करना चाहिए। और आयुर्वेद के अंतर्गत जो रजस वाला परिचर्या बताई है, तो रजस वाला परिचर्या के अंतर्गत हमें, जैसे आज के समय में, जैसे पहले के जमाने में जो बाल्यावस्था बोलते हैं, तरुणी अवस्था बोलते हैं, वो जो पीरियड, जो पहला जो उसका मासिक शुरू होता था, वो 14 साल की उम्र से शुरू होता था। अब धीरे धीरे वो 10 साल की लड़की जब 10 साल की होती है, तब वो शुरू होता है। तो उसका पीछे का कारण है आज की हमारी लाइफस्टाइल, फूड, ये सारे कारण है। मानसिक क्षतियां जो मैंने बोली अभी, जो समझा है कि डीएनए के अंदर जो क्षतियां आती रहती है, फर्दर वो धीरे 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 साइकिल वीक होता जा रहा है। तो हमें रजस वाला परिचर्या के अंदर क्या करना चाहिए कि जैसे वो आयुर्वेद के अंतर्गत जब लड़की पहली बार जो माहवारी के अंदर आती है, तो उसका जैसे फूड से लेके उसको सारे आहार और विहार, विहार माने उसको ज्यादा खेलना नहीं है, ज्यादा कूदना नहीं है। जो आजकल जो सारी लड़कियां स्पोर्ट्स खेलती है, फुटबॉल खेलती है, टेनिस खेलती है, बैडमिंटन खेलती है, तो वो माहवारी के पीरियड्स के दौरान भी वो खेल के लिए जाती है बाहर, तो वो गलत है। बिकॉज आयुर्वेद के अंदर ये मेन जो कारण दिखाया है, वो अपान वायु का अवरोध बोला है। तो अपना गर्भाशय जो है वो श्रोणी गुहा के अंदर रहता है, और अपने शरीर के अंदर जो पंच वायु जो काम करते हैं, वो पंच वायु में एक जो वायु है वो अपान वायु है। वो अपान वायु का मेन काम है यूट्रस, अपना गर्भाशय, बीजाशय, उसकी जो फैलोपियन ट्यूब, उसके अंदर जो सारा जो रक्त संचार, वायु का जो बैलेंस होना है, वो सारा यही ऑर्गन्स के अंतर्गत आता है। अपान वायु कैसा होता है? अपान वायु कूल होता है, ड्राई होता है, स्टेबल होता है। अगर उसके अंदर दुष्टि आ जाती है, तो फिर हमें जैसे धीरे धीरे कई सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इरेग्युलर मेंसेस होते हैं, डिसेम्यूनेरिया होता है। डिसेम्यूनेरिया मतलब कष्ट प्रवृत्ति के साथ मासिक माहवारी आना, ये सारा जो प्रॉब्लम्स होता है वो शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो ये हमें समझना है कि कैसा खाना देना है, कैसा उसको आचार विचार से करना है। तो सबसे पहले हमें माता जो है उसको बहुत ये सब चीजें ध्यान रखनी है। अगर माता ये सब चीजें ध्यान रखेगी, तो ही वो आने वाली पीढ़ी के अंतर्गत ये सब गुण उतरेंगे और बीज की क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। तो माता को ये समझना है कि अगर लड़की जब पहली बार माहवारी में आती है, तो उसको कैसे गाइड करे, उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करे, उसको सारा समझाए कि भाई ज्यादा खेलना नहीं है, थोड़ा सोना है, अच्छे से रेस्ट करना है, थोड़ा गाय का घी का भी सेवन करना है, और अच्छी से नींद लेना है, ज्यादा कोई आइसक्रीम या मैदे वाली चीजें ये सब नहीं खानी है।
और आयुर्वेद के हिसाब से तो ये भी बोला है रजस्वला परिचर्या के अंदर कि वो 5 दिन हेड़ बात नहीं करना है। दर्भ की चटाई जो होती है उसके ऊपर लेटने को बोला है, जमीन के ऊपर दर्भ की चटाई लगा के उसके ऊपर सोना है, ताकि अपान वायु का बैलेंस रहे और जो पेन ना हो बॉडी में वो शायद ना हो। और दूसरा और आर्तो प्रवृत्ति के अंतर्गत हम जो आयुर्वेद के हिसाब से समझे, तो जैसे वातज आर्तव के लक्षण, पित्तज आर्तव के लक्षण, कफज आर्तव के लक्षण, अलग अलग आर्तव प्रवृत्ति के हिसाब से हम देख सकते हैं कि उसकी प्रकृति क्या है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करने, मतलब उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करने करी जाती है। तो आयुर्वेद के अंतर्गत जब हम देखते हैं कि ये वातज आर्तव के लक्षण कैसे होते हैं, तो जैसे कृष्ण वर्ण होता है आर्तव का, उसको पेनफुल रहता है पीरियड्स के दौरान, फिर उसको नींद नहीं आती है। पित्तज के अंदर ज्यादा हैवी फ्लो होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, वो उसकी नींद थोड़ी कम होती है। कफज में उसको पैर में भारीपन लगेगा, थोड़ा अनइवन उसका मेंस्ट्रुएशन होगा, पहले 2 दिन स्पॉटिंग आएगा, फिर फ्लो हैवी फ्लो आएगा। ये सब जो कफज आर्तव के जो लक्षण बोले हैं, ये सब प्रकृति के हिसाब से दिया गया है। तो रजस वाला परिचर्या में ये सब चीजें ध्यान रखनी है, और ये सब चीजें अगर हम फॉलो करेंगे तभी हमारे बीज की क्वालिटी अच्छी होगी। और जब एक विवाह संस्कार जो होता है उसके बाद जो विवाह करती है लड़की, तो उसके बीज की क्वालिटी अच्छे होने से उसकी प्रोजनी जो होती है वो अच्छे से आती है। तो इसके लिए आयुर्वेद के अंदर अगेन गर्भधान संस्कार, गर्भिणी परिचर्या का विवरण किया गया है। तो उसके अंदर भी जैसे कई सारे संस्कार दिए गए हैं कि गर्भाधान संस्कार के पूर्व क्या करना है, कि स्त्री शुद्धि, स्त्री की शुद्धि, और स्त्री के देह की शुद्धि और पुरुष के देह की शुद्धि, ये दोनों चीजें करने को बताया गया है। उसके बाद शुक्र और शोणित का संयम जिसे बोलते हैं, उसके बाद कोइटस का जो बताया गया है, और उसके बाद जो बच्चे की जो प्रोजनी जो होती है वो संस्कार के दौरान जो अगेन जो जो संस्कार जो बताए गए हैं उस हिसाब से फॉलो करने होते हैं। तो ये पहले 3 महीने जो है बीज शुद्धि, ऋतु शुद्धि, अंबु शुद्धि जिसको बोला गया है, क्षेत्र शुद्धि, अपान वायु की शुद्धि करना बहुत जरूरी है, जिससे आने वाले अगर वो पहले से ही देह शुद्धि करती है, स्त्री अगर पहले से ही गर्भाधान पूर्व देह शुद्धि करती है, तो उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी भी कई सारे डिसीज से वो बच सकती है, बिकॉज उसकी ऑलरेडी देह शुद्धि हो गई होती है। राइट तो देह शुद्धि होने की वजह से उसको फर्दर जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आजकल कई लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाता है, हाई बीपी हो जाता है, बार बार कई लोगों को आज मैं देख रही हूँ मेरे ओपीडी क्लिनिक में कि फीवर आता है। तो ये सारी जो कारण है, वो सारे कारण मुझे लगता है कि काफी हद तक वो लोग निर्मूल कर सकते हैं। और गर्भिणी परिचर्या का संपूर्ण पालन करने से आने वाला जो बच्चा होगा वो और इम्यून उसका इम्यून अच्छा रहेगा, वो बहुत अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। उसके बाद अगेन सूतिका परिचर्या का पालन बोला है। तो सूतिका परिचर्या में क्या बताया गया है कि अगर ये गर्भाधान के कारण गर्भ रहने के कारण स्त्री के ऊपर काफी मेंटली और फिजिकली जो दबाव पड़ा है, जो तनाव पड़ा है, तो उसको वापस उसको पुनः प्रस्थापित करना है। राइट उसको वापस हेल्थी होना है। तो वो हेल्दी अगर उसी समय अगर जो अगेन वो हेल्दी नहीं होगी, तो फिर वो मेनोपॉज के दरमियान वो परेशान होती जाएगी। उसकी हेल्थ मेनोपॉज के जो जो 3 स्टेज बोले हैं, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉजल, ये 3 अवस्था के अंदर उसको काफी सारे जो बोलते रोग भी बोल सकते हैं, और छोटी छोटी जो तकलीफ जो होती है उससे गुजरना पड़ता है, जिसका कई बार कई तकलीफों का एकदम से निवारण मतलब निर्मूल नहीं हो सकती उसके तो इसीलिए ये अगर जो सूतिका परिचर्या का पूर्णपणे पालन किया जाए, तो आने वाली जो उसकी जो बाकी की जो अवस्था है, मेनोपॉज की रजोनिवृत्ति काल की अवस्था है, वो अच्छे से पास आउट होगी। मतलब वो आसानी से वो गुजर जाएगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी धीरे धीरे ये पैंडेमिक के कारण सब लोग आयुर्वेद के प्रति जागृत हो चुके हैं, और क्वाइट फास्टर भी सब लोग आने लगे हैं आयुर्वेद के प्रति। तो ये बहुत एक अच्छी बात है। और वैसे आयुर्वेद के अंदर बहुत कुछ है इसके लिए बोलने का। तो अभी प्रसवोत्तर की बात सूतिका परिचर्या,
सूतिका परिचर्या के अंदर जो बोल बताया गया है कि स्त्री को सेक करना है, मसाज करना है, गाय का घी का सेवन करना है, ताकि उनकी उसकी बॉन्ड डेंसिटी वापस आ जाए, यूट्रस का वापस, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दरमियान यूट्रस उसका लाइक 80 सेंटीमीटर बड़ा होता है। जैसे यूट्रस की जो साइज होती है 6.5 सेंटीमीटर तक होती है। कई कई स्त्रियों का क्या प्रॉब्लम होता है कि जो यूट्रस की स्थिति जो वापस आती है तो थोड़ी बहुत ज्यादा रहती है, जैसे 6.5 तक नहीं आती, जो वापस आ जानी चाहिए 3 मंथ तक। बोला है कि 3 महीने तक सूती का परिचर्या का पूर्ण ध्यान रखना है यूट्रस की वापस नॉर्मल स्थिति के लिए, राइट। तो वो 3 महीने के अंदर 6.5 सेंटीमीटर तक नहीं आती, वो किसी किसी का 7 सेंटीमीटर लेता है, किसी किसी का 7.5 सेंटीमीटर लेता है। तो कई बार क्या होता है कि मेनोपॉज के दरमियान, जब मेनोपॉज चल रहा है उसी दरमियान जो शुरुआती लक्षण चालू होते हैं, तो सोनोग्राफी कराते हैं या कुछ भी डिटेक्ट कराते हैं तो थोड़ा बल्कि यूट्रस आता है। अगर बल्कि यूट्रस आता है तो उसकी वजह यह है कि जो यूट्रस वापस नॉर्मल जो 6.5 सेंटीमीटर तक आना चाहिए वो नहीं आता, थोड़ा बहुत रह जाता है, मतलब जो 7 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर तक रह जाता है। तो उसका एक कारण है। अगर बल्कि यूट्रस आता है तो उसके साथ में अगर उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, मेनोरेजिया ना हो, मेट्रोरेजिया जिसका मतलब कि अश्रुक दर्द जिसको आयुर्वेद में बोला है, हैवी फ्लो बोला है, तो ये सब कारण ना हो, इसके लिए जो सूती का परिचर्या का पूर्ण हमें पालन करना चाहिए। गाय का घी का सेवन करना चाहिए, शेक लेना चाहिए, मसाज करनी चाहिए, अभ्यंग जिसको बोला है प्रॉपर वे में अभ्यंग करना चाहिए, नश्य कर्म कर्म करना चाहिए, ताकि आपके हार्मोन्स वापस बैलेंस में आ जाए। और अच्छे से खाना पीना चाहिए ताकि ब्रेस्ट फीड अच्छा आए और अपने बच्चे को जैसे ब्रेस्ट फीड अच्छे से दे सको और उसका इम्यून भी अच्छा रहे, और आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से स्वस्थ रहो। अगर आप ये सब परिचर्या का पालन करते हो तो आप अंदर से खुश रहोगे, चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, पर आप अंदर से खुश रहोगे। ऐसा नहीं है कि आप खुद, कोई व्यक्ति खुद से भी बैलेंस कर सकता है, पर अगर ये सब उसके साथ में हो तो स्त्री की हेल्थ, स्त्री की मनोदशा सब बहुत स्त्री की हेल्थ जैसे मानसिक रूप से भी स्वस्थ होती जाएगी, वो मानसिक रूप से और हेल्दी होती जाएगी। जितना स्त्री मानसिक रूप से हेल्दी होती जाएगी उसकी उतनी उतनी उसकी प्रोजनी जो है, उसके आगे आने वाली संतान जो कई पीढ़ी दर पीढ़ी संतान है, वो हेल्दी, ताकतवर, शक्तिमान, ये सब आएगा। अब आजकल क्या होता है कि सारी लड़कियां को भी देखूं या कई सारी लेडीज को भी, वुमेन को भी मैं देखती हूँ, तो कई बार अपने जीवन के प्रति उदासीन होते हैं, राइट। तो जीवन के प्रति कभी उदासीन नहीं रहना है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, पर जीवन के प्रति कभी उदासीन नहीं रहना है, अपने आप को समर्थ बनाना है। तो ये समर्थ का जो वेद और ऋषि मुनियों ने जो हमें ये परिचर्या का पालन किया गया है, तो हमें उसका 110% फॉलो करना चाहिए। और किसी आयुर्वेद के पास किसी आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाके, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो जाके पूछना चाहिए, आपके नजदीक कोई भी हो, कि मुझे ये सिचुएशन है तो क्या करना चाहिए, अभी मैं प्रेग्नेंट हूं तो क्या करना चाहिए, मुझे ये पीरियड्स के दौरान जो ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस है। तो एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन के पास तो ऐसा इलाज नहीं है कि वो क्योर करे, मतलब निर्मूल से मिटाए और बीज की शुद्धि करे, बीज की क्वालिटी में फेर आए, ऐसा उसके पास नहीं है। हाँ, वो सिम्टोमेटिक आपको रिलीव कर सकेगी, पर बीज की शुद्धि, आपके बीज जो है वो अच्छा करने की जो ताकत है वो आयुर्वेद और योग के अंदर है। तो हर एक मेरा आज के दिन कहने का फोर्स यही है कि आप हर एक अपनी जो लड़की होती है मैनार्की स्टेज में जो होती है, उसको योग और आयुर्वेद का संपूर्ण पले पालन करवाना चाहिए, कैसे भी करके, थोड़ा बहुत प्यार से। आज की पढ़ाई और ये सब भी बहुत कुछ ज्यादा हो गया है, पर फिर भी ये सब उसको करवाना चाहिए। और और अभी आप पूछिए और कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे, क्योंकि बहुत सारा है, मैं कैसे। પુનિતા મેમ, આપણે ક્વેશ્ચન આન્સરિંગ મૌલીબેનના ટોક પછી લઈશું, કમ્બાઈન બંનેના. ओके ओके ओके, तो मुझे अभी और आगे ले जाना है। ओके, तो जैसे आयुर्वेद के अंदर जो है वो पीसीओडी जो अपान वायु का मैंने जो बोला, रजस्वला परिचर्या के अंदर अपान वायु जो है उसका अवरोध न हो, उसके लिए जो हमने बताया गया है कि ज्यादा खेलना नहीं है, ज्यादा कूदना नहीं है, और अच्छे से डाइट फॉलो करना है, योग करना है,
योग के अंदर सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, ये सब चीजें करना है ताकि आपके हार्मोन्स बैलेंस में आए। और आयुर्वेद के अंतर्गत जो जिसको बोला है कि जैसे ज्यादा पेन हो तो जैसे अजवाइन का पानी पी सकते हो। अगर वात किसी की कोई लड़की जो पतली है, वातल प्रकृति की है, और उसको मेंसिस में स्कैंटी मेंसिस आता है, तो उसके अलग कारण है, तो उसको थोड़ा पुष्टि देना चाहिए। तो उसके हेल्थ के लिए उसको थोड़ा पुष्टि देना चाहिए, मतलब उसको खुराक फूड में उसको अच्छा देना चाहिए ताकि वो अच्छे से उसका ये जो साइकिल जो है वो चलता रहे अच्छे से, और ये उसकी साइकिल के दौरान उसको कोई तकलीफ ना हो। दूसरा, आज एक दूसरी बात मैं एक आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ड्यूरिंग जो मेनोपॉज के बाद, मेनोपॉज के दरमियान सबको, कई लोगों को एक फूड के बारे में एक मीथ है कि भाई सलाद ज्यादा खाना चाहिए, तो कच्चा सलाद ज्यादा खाना चाहिए। तो आयुर्वेद उसमें मना करता है कि कच्चा सलाद ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बिकॉज कच्चा सलाद खाने से आपको हैवीपन रहेगा, पेट में भारीपन रहेगा, और वो जल्दी पचेगा नहीं, और आपको उसके उसके अंदर जो कई प्रकृति के हिसाब से खाना है। तो जैसे आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, कैसे आप जज करोगे कि मुझे ये मैंने जो खाया वो अच्छा है कि मुझे पच गया कि नहीं। तो जैसे आप कच्चा खाते हो तो उसके कई घंटे तक आपको वो हजम नहीं होगा, पेट में भारीपन रहेगा। थोड़ी सी हल्की सी स्टीम करके और बॉईल करके जो खाओगे तो वो आपको अच्छे से उसका जो होता है वो पचन अच्छे से हो जाएगा, और भूख अच्छे से लगेगी। तो ये एक आप समझ सकोगे कि सलाद खाना मेरे लिए कितना जरूरी है और कितना मेरे पेट के लिए अच्छा है। राइट। तो ये सब भी है कि जो रजस्वला के दरमियान, मेनोपॉज के दरमियान, और ड्यूरिंग प्रसूति अवस्था के दरमियान भी ये सब ज्यादा कच्चा सलाद भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे भी कई सारे लोगों को सर्दी भी हो जाती है। और इम्यून तो अच्छा होता है, बिकॉज कई उसका इम्यून का एक कारण ये नहीं है कि सलाद खाने से ही इम्यून आ जाता है। राइट। इम्यून का भी बहुत सारे जो रीजन है, बहुत सारी बातें हैं। पर कहने का मतलब ये है कि फूड के अंदर, जैसे ही आजकल सब ड्राई फ्रूट भी बहुत खाते हैं, अनइवन अलग अलग समय पे ड्राई फ्रूट खाते हैं, तो आयुर्वेद ये भी मना करता है कि ज्यादा ड्राई फ्रूट खाने से भी आपके अंदर कफ और पित्त की बढ़ोतरी होती है। तो ड्राई फ्रूट कब और कैसे खाना चाहिए? जिसकी वात प्रकृति होती है, जो पतला होता है, जिसके अंदर ताकत कम होती है, शक्ति कम होती है, उसी को ज्यादा खाना चाहिए, और ज्यादा भूख लगे तभी खाना चाहिए ताकि वो अच्छे से हजम हो सके। अगर वो आपने अगर अलग समय पे आपने सुबह उठ के ही, पहले ही उठ के जैसे 5-6 बादाम खा ली, 7-8 अखरोट खा लिए, 5-6 अंजीर खा लिए, तो आपको ये हजम नहीं होगा। फिर आपको पता नहीं चलेगा, आपके शरीर के अंदर की जो ये सारी स्थिति धीरे धीरे करके डेवलप होती जाएगी, और अगेन अपान वायु को ही अवरोध करेगी। और वो लड़कियों के लिए अपान वायु का जो अवरोध होता है, तो वो अगेन उसकी पीरियोडिक साइकिल में वो प्रॉब्लम आता है। तो अगर ये सब चीजें ना हो, उसके लिए उसको पूरा ये सब चीजें का ध्यान रखना है। राइट। और टेक सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और फिर हम मौली बहन को बुला के फिर आपका क्वेश्चन आंसर लेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आता है तो थोड़ा रैप अप कर देना है, ठीक है? हाँ बाकी रह जाता है तो। हाँ। और दूसरा, जैसे मेनोपॉज के अंदर पेरीमेनोपॉज जिसको बोलते हैं, मेनोपॉज रजन निवृत्ति काल, जिसको मैंने थोड़ा बाकी रह गया, वो रजन निवृत्ति काल जो जिसको बोलते हैं, तो उसकी 3 अवस्था होती है, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉजल। रजन निवृत्ति काल का मतलब होता है कि माहवारी बंद हो जाना, पीरियड अपने बंद हो जाना। राइट। और वो कैसे बंद होते हैं? हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होता है पेरीमेनोपॉजल पीरियड में, फॉलिकल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, तभी मेनोपॉज पीरियड शुरू होता है। तो पेरीमेनोपॉज पीरियड के अंदर थकान लगना, हॉट फ्लसीज होना, और चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा होना, वाटर रिटेंशन, ये सारी चीजें पेरीमेनोपॉज पीरियड में हो जाती है। उसी समय अगर आयुर्वेद का सहारा लिया जाए, उसी समय खान पान का ध्यान रखा जाए, उसी समय योग अगर किया जाए, तो मेनोपॉज का जो पीरियड है और पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड तो चलता ही रहता है। राइट। पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड जो है वो 70 इयर्स तक चलता रहता है। तो पोस्ट मेनोपॉजल में क्या होगा? आपको हड्डियों का पेन नहीं होगा, हड्डियों का पेन नहीं होगा। आप आपको थोड़ी एनर्जी लगेगी बॉडी में। थोड़े आपके जो ब्रेस्ट होते हैं वो श्रिंक होते जाएंगे पोस्ट मेनोपॉजल में। पेरीमेनोपॉज में ये नहीं होता, पेरीमेनोपॉज में ब्रेस्ट हैवी लगेगी,
थकान लगेगी, और वाटर रिटेंशन होता जाएगा, हॉट फ्लसेस होता जाएगा। और मेनोपॉज के दरमियान किसी किसी को अगर बल्की यूट्रस है और फाइब्रोड है, एडिनोमाइसिस है, ये सब चीजें जो जिसको आयुर्वेद के अंदर अर्बुद बोला है, ग्रंथि बोला है, ये सब अगर बढ़ता है यूट्रस की लाइन, तो वो सब बढ़ता है। तो तो उसके अंदर जो मेनोपॉज के दरमियान ये सब जो होता है, तो हैवी फ्लो जिसको बोलते हैं, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया दैट मीन्स के अनइवन ब्लीडिंग। जैसे आज 10 दिन आया, फिर 5 दिन गैप हुआ, फिर से वापस हो गया। मेनोरेजिया मतलब जो ब्लीडिंग दरमियान जो 5 दिन जो आता है, उसी माहवारी के दरमियान बहुत फ्लो आता है। जैसे किसी किसी को 5-6 पेड़ बदलने, चेंज करने पड़ते हैं, राइट। तो ये मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया, ये सब जो मेनोपॉज पीरियड में होता है, राइट। तो मेनोपॉज पीरियड में ये होता है कि इंटरमिटेंट हैवी फ्लो होता है। तो और दूसरा पीरियोडिक मेनोरेजिया जिसको बोलते हैं, मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया। तो ये सब मेनोपॉज के अंदर आता है। और पोस्ट मेनोपॉजल जब जब धीरे धीरे ये सब, कई लोगों को ऐसे ही धीरे धीरे बंद हो जाता है मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकल्स भी कम हो जाते हैं, तो ये सब बंद हो जाता है अपने आप। नहीं होता है तो फिर किसी डॉक्टर के पास या वैद्य के पास, चिकित्सक के पास जाके उसकी परामर्श करना चाहिए। और धीरे धीरे करके फिर मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉजल आता है। पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में क्या होता है, ये सब खत्म हो गया होता है। तो उसके अंदर आपकी मेनोपॉज के अगर सूती का परिचर्या में आपने फॉलो किया होता है, गाय का घी, गाय का दूध, घी, ये सब सेवन किया होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो चेंजेस होते हैं, वो अभी आपको ये समय, ये पीरियड में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस चेंजेस है, यहाँ आपको कम होगा, और आपको परेशानी कम होती जाएगी, पेन नहीं होगा, और आपकी स्वास्थ्य में के अंदर एक एनर्जी लगेगी। दूसरा एक ये कारण है कि आपको शक्ति अंदर से खुद ब खुद महसूस होती जाएगी। और दूसरा तो कई बहुत का कारण है, पर मेन आपको मैं ये सब आपको फॉलो करना चाहिए। और जरूरत के हिसाब से डॉक्टर के पास जाके या वैद्य के पास जाके आपको मिलना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम हो उसके हिसाब से। Thank you so much, ma'am, ओके। for joining us rather. So पुनीता मैम ने बहुत ही अच्छी तरह फ्रॉम द रूट, डीएनए से चालू होके पूरी हमारी जो लाइफ स्पैन में कैसे हॉर्मोन्स वर्क करता है इन वुमेन्स बॉडी, बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने नॉलेज दिया हमें। And hope we need to understand and keep this knowledge in our mind, and she is always there to help us out. ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड होगा, आपको अगर फिर से सुनना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे फेसबुक पेज पे इंडियन योगा एसोसिएशन के, तो बिकॉज इट इज अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग, यू कैन गो एंड चेक एंड लिसन इट अगेन. We take the question answering later on, sorry for that. And our next speaker, Mauli Babiskar, let me just give you a brief introduction about her. She's going to talk about yoga and hormonal balance again. A designer by education and a vocalist by and heart. Mauli has 3 master degrees, advanced certification from International Association of Yoga Therapists, Yoga Alliance USA, and an in-depth training in the Vedic mantras in Krishna Yajurveda tradition. She's a beautiful chanting, she does a beautiful chanting with all this mantras and stutis, and because of her knowledge in music as well as knowledge in the Vedic culture. She is a founder and executive director of Damru Yoga and Sound Therapy Studio. She is an internationally certified pregnancy yoga educator. She mainly conducts yoga therapy and sound therapy at Damru in person in Ahmedabad and globally via digital platform.
So we welcome Mauli. Namaste. Welcome. Namaste, Vasivan. Thank you for this kind introduction. एक minute, let me remove my spotlight and you will be there. Thank you, Mauli. Namaste to everybody, and in advance, wishing you a very happy Women's Day and being grateful कि हमको ये योनि में शक्ति स्वरूपा बनने का अवसर मिला है। पुनीता बेन ने बहुत अच्छे से पूरा एक लाइफ साइकिल कवर किया कि कैसे हमारे लाइफ स्टेजेस में अलग अलग चीज़ें हमें अफेक्ट करती है। मैं थोड़ा सा जेनेरिक जाऊंगी। योगा एंड हार्मोनल हेल्थ, हॉर्मोन्स की जब बात करते हैं, सो व्हाट आर दीज हॉर्मोन्स एंड फ्रॉम वेयर आर दे सीक्रेटेड? So you would have heard of something called the endocrine system or the glands. तो ये जो ग्रंथियां है, ग्लैंड्स है, वहां से आप समझ सकते हैं एक छोटे से केमिकल मैसेंजर रिलीज होते हैं। ये है हमारे हॉर्मोन्स, और ये शरीर के बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े काम करते हैं थ्रू दीज केमिकल मैसेजेस दैट गो थ्रू आउट योर बॉडी। अभी जब हॉर्मोन्स की बात करते हैं, ये बहुत वास्ट टॉपिक है एंड देर विल बी अ लॉट ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम योर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, फिर पीनियल है, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड है। तो ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स है, सॉरी हॉर्मोन्स है। what we are going to talk is which are the most notorious ones, the troublemakers, कि जिसका एक फाइन बैलेंस बनाए रहना लाइफ में बहुत जरूरी है। तो एक आपने बहुत कॉमनली सुना होगा थायराइड के प्रॉब्लम्स, हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। एंड देन ये ओवरीज की जब बात करते हैं, या जो अपना प्रजनन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में एक्चुअली पुनीता मैम ने बहुत अच्छे से कवर किया है। सो दैट एंड द एड्रिनलिन ग्लैंड, तो ये हमारा स्ट्रेस का जो सिस्टम है, जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स मॉनिटर करता है, उसके लिए बनाया हुआ ग्लैंड है। और आजकल का हमारा जो लाइफस्टाइल है, तो हम तो मतलब क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड सिचुएशन में रहने के आदी हो गए हैं, और हमको लगता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो चलता रहता है, सबके लाइफ में होता है। किसी को बीपी है, डायबिटीज है, ये तो नॉर्मल है, गोली खा लो, बात खत्म। तो ये जो इम्बैलेंसेस है, उसको हम अभी बहुत नॉर्मली एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली इसका भी बैलेंस लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज सिर्फ डायबिटीज तक सीमित नहीं है, इट विल गो आउट टू सो मेनी अदर रेपरकशंस। और आपको लगेगा कि सिर्फ हेल्थ वाइज रेपरकशन है, ऐसा नहीं है। आपके हेल्थ में, आपके इमोशंस में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके लाइफ के ओवरऑल क्वालिटी में फर्क आ जाता है, और जब उसका उपाय है तो क्यों ना करें। सो जस्ट लिटिल बिट शिफ्ट इन लाइफस्टाइल एंड दिस बैलेंस कैन बी अचीव। तो ये छोटी छोटी टर्म्स हम यूज करते हैं कि आई गो टू द जिम, या आई प्ले सम हार्ड रॉक म्यूजिक और इट फील्स ग्रेट, एड्रेनालिन रश। ये हम कितने मजे से बोलते हैं, एड्रेनालिन रश। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। एड्रेनालिन का बैलेंस इतना सेंसिटिव बैलेंस है, उसको बनाए रखना इतना इम्पोर्टेंट है, एंड उसका परिणाम हम देखते रहते हैं आए दिन। विमेन, and now it's just heartbreaking how very young girls, even teenagers, they come to me for therapy for PCOD, PCO, ये तो बहुत ही कॉमन हो गया है, PCOD, PCOS, there are conditions like autoimmune conditions है, psychosomatic conditions है। ये सब क्यों आता है? ये सब लाइफस्टाइल हमारा इतना डिस्टॉर्टेड बना दिया है हमने, तो ये ठीक करना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट ओके टू प्ले अराउंड विद द कॉस्मिक साइकिल्स बेसिकली। तो कुछ 7 स्टेप्स है जो मैं आपको, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल ऑफ दो स्टेप्स, बट आई जस्ट टेल यू कि क्या क्या चीजें हैं। इतना भी नहीं है ज्यादा, ये आपने बहुत सुना भी होगा, और बार बार ये सुनते भी रहना तो कहीं कभी क्लिक कर जाएगा एंड यू माइट टेक इट इन योर ओन लाइफ स्टाइल।
सो वन इज योर डाइट, आप क्या खाते हैं, आपका जो शरीर है जिसको हम अन्नमय कोश कहते हैं, उसकी पुष्टि, उसका नरिशमेंट अन्न से होता है, जो आप ग्रहण करते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है। अभी डाइट बोला तो हम जाते हैं डाइटिशियन के पास, जो बनाएंगे एक चार्ट, इतना कैलोरी, उतना कैलोरी, इतना कार्ब्स, इतना प्रोटीन। while there is a science of that, हम सनातन धर्म में देखें तो हम जब कुछ ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो उसको प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करते हैं। खाना हमारे लिए सेक्रेड है। हाँ, और जब हम ये लड़कियां, आप देखते हैं लड़कियां क्या आजकल तो सब कि डाइटिंग करना है, तो डाइटिंग करना बुरी बात नहीं है, पर उसके साथ साथ एक मनस्थिति चाहिए जो पॉजिटिवली उसको ले। हमेशा ये देखा है मैंने कि कभी भी किसी को यहाँ आते हैं कुछ ऑफर करते हैं तो खाने के टाइम उनका गिल्ट का फीलिंग रहता है, दे फील बैड अबाउट ईटिंग। अभी ये इंटेंशन से और ये एनर्जी से अगर खाना अंदर गया, चाहे आप कितना भी हेल्दी खाना खा लो, पर आपका माइंड अगर उसको गिल्ट से खा रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प योर सिस्टम। So small things like this, we'll not go so much into detail. Diet. One is the second important part, as a part of diet actually, is the white processed sugar. एंड खास करके हमारे गुजरात में तो हम डायबिटीज में नंबर 1 पे है। तो शुगर, मीठा खाना बुरी बात नहीं है, पर ये जो प्रोसेस्ड वाइट शुगर है वो हमारे ग्लूकोज के जो साइकिल्स है उसको बहुत डिसरप्ट करता है। सो वन इज दैट। कैफीन, ब्लैक कॉफी, टी, चाय हमारे कल्चर में बनता है बहुत सालों से, लेकिन चाय बनाने का भी एक तरीका होता है, उसमें कुछ हर्ब्स जाते हैं वो बैलेंस आउट करते हैं, बट वी आर समटाइम्स एडिक्टेड, जो क्या करता है कि शरीर में जो वाटर लेवल्स है इट जस्ट ड्राइज आउट। तो कैफीन का एक ध्यान से इंटेक करें। आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली सब छोड़ दीजिए, पर थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ कीजिए और मेक इट इन अ वे दैट इट इज नॉट हार्मिंग योर सिस्टम टू मच। टेक इट एट द टाइम ऑफ द डे वेयर इट इज नॉट हार्मिंग योर सिस्टम। तो एक्चुअली चीजें क्या है उससे ज्यादा कब ली गई है, कैसे ली गई है, कितने क्वांटिटी में ली गई है, ये भी बहुत इम्पैक्ट करता है। तो डाइट, शुगर, कैफीन, वॉकिंग। वॉकिंग, हम सोच लेते हैं कि वॉक मतलब पूरा दिन टीवी देखा या फिर लैपटॉप पे है, फोन पे है, और फिर शाम को आधा घंटा वॉक के लिए जाएंगे। एटलीस्ट अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये भी अच्छा ही है, प्लीज कंटिन्यू विद दैट। बट डे टू डे चीजों में, जैसे अगर मुझे यहाँ से पानी का ग्लास चाहिए तो वी विल हैव हाउस हेल्प या फिर किसी और को बोल देंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें अपने खुद के काम अगर करते हैं तो स्टेइंग इन मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके शुगर साइकिल्स इससे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। अ गुड स्लीप। अभी तो मुझे कैसे मेरे योगा स्टूडियो में ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं कि मैम आप एक मिडनाइट क्लास क्यों शुरू नहीं करते, क्योंकि हम तो रात को ही हमें टाइम मिलता है और फिर रात को 2-2:30 बजे इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब करके फिर आराम से हम सोते हैं। ये ध्यान रखें, ये कोई एथिक्स या मोरालिटी या लाइफस्टाइल किससे सीमित बात नहीं है। हम जितना भी प्रोग्रेस कर ले, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, अभी रात को भी उतना ही लाइट है मेरे रूम में, लेकिन मेरे जो न्यूरोपेप्टाइड्स है, जो ब्रेन केमिकल सीक्रेट होते हैं, वो एक्चुअली नेचर के साइकिल्स के साथ बंधे हुए हैं। बायोरिदम्स कहते हैं उसे, सर्काडियन रिदम्स कहते हैं उसे। और वही हमारी भाषा में जैसे इन्होंने बोला दिनचर्या, ऋतुचर्या, तो ये सब हमारे सिस्टम के साथ और उसके केमिकल रिलीज के साथ इंट्रिकेटली रिलेटेड है। तो आपको लगेगा कि रात को मैं फुल लाइट ऑन करूंगा तो मेलेटोनिन रिलीज नहीं होगा। सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में उस टाइम पे अच्छे से नींद लेना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये आपका सिस्टम मेंटेन करता है, रिपेयर करता है। ह्यूमन बॉडी इतना इतना ब्यूटीफुल है, दिस इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम, हमें खुद का हमारा इलाज करने को आता है, बट हमको क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है। तो मौली बहन के पास जाएंगे, मैडम आप थेरेपी करके ठीक कर दो, नहीं ठीक है तो कोई डॉक्टर के पास जाके सर्जरी कर देंगे,
ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने खुद की लेने से बचने का जो मेंटालिटी है उससे भी बाहर आना है. यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन हेल्थ एंड योर सिस्टम इज capable of doing that. And the last one, which is for me the most important, is yoga as a part of your daily life. तो ऑब्वियसली ये 7 स्टेप्स में से हमारी बात तो योग पे ही ज्यादा जाएगी. तो योग में भी, या फिर ये सारी चीजें जो भी हमने बात की, और एक और चीज, सॉरी, हम ये आजकल बहुत सुनते हैं पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग. तो पॉजिटिव थिंकिंग को अप्रोच करने का भी एक तरीका होता है. नहीं तो क्या होता है, लोगों को तकलीफ है, वो एक्सप्रेस नहीं करते और बाहर से अच्छी अच्छी बातें करते हैं. तो सारी जो गंदगी है वो ऐसे कारपेट के अंदर डाल दी, ऊपर से सब क्लीन. ये गंदगी धीरे धीरे स्टिंक करके पूरे माहौल को खराब करेगी. सो हाउ टू पर्ज आउट नेगेटिविटीज एंड क्रिएट अ पॉजिटिव लूप, इसके लिए योग अभ्यास बहुत हेल्प करता है. खास करके जब योग सूत्र का अभ्यास करते हैं कि माइंड को ट्रेन कैसे करें. ये नहीं है कि नेगेटिविटी को दबा दे कहीं पे, बट हाउ टू डील विद दैट, हाउ टू रिजॉल्व दैट. जितना पॉजिटिव लूप में जाते रहते हैं उतने ब्रेन केमिकल्स जो रिलीज होते हैं वो बदलते रहते हैं, और उतना ये साइक्लिक है. जितना पॉजिटिविटी में रहूंगी, बैलेंस में रहूंगी, उतना ब्रेन केमिकल्स, अच्छे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो ये पॉजिटिविटी में मुझे मदद करते हैं. And this cycle helps us to thrive as a system. So that fine balance is very important. जैसे अभी हॉर्मोन्स की हम बात कर रहे हैं, तो हमें क्या लगता है, कॉर्टिजोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, तो ये बहुत बुरा है. इंसुलिन, डायबिटीज में इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, तो इंसुलिन बहुत खराब है. कोलेस्ट्रॉल, अरे इसका सब आर्टरीज ब्लॉक हो गया, कोलेस्ट्रॉल बहुत खराब. इट इज नॉट खराब, एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल इज नीडेड फॉर योर स्टेरॉइड मैकेनिज्म. तो कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो भी तकलीफ होगा. सो वी नीड गुड कोलेस्ट्रॉल, we need insulin, it is necessary for blood sugar control. We need cortisol for restoring the energy levels. अभी बहुत बहुत कॉमनली मुझे ये केसेस आते हैं कि वैसे तो सब ठीक है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम ऐसा नहीं लगता, बट पूरे दिन मैम थकान रहती है, फ्रेश नहीं लगता, एनर्जी नहीं फील होती. व्हाट इज दैट? दैट्स अ एड्रेनलिन ओवरलोड और कॉर्टिजोल का इम्बैलेंस. तो ये सब हॉर्मोन्स हम मानते हैं कि खराब है. वो कब खराब है? जब एक्सेस हो जाते हैं या फिर एकदम कम हो जाते हैं. दे आर गुड इन अ पर्टिकुलर परफेक्ट बैलेंस. so we need them all. and जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है. सो सुबह उठ के सीधा हमने कुछ खा लिया, उसके पहले थोड़ा सा अगर बॉडी मूवमेंट शुरू हो जाता है तो शुगर साइकिल्स बैलेंस में आने शुरू हो जाते हैं. एंड योग अभ्यास, तो योग अभ्यास में आजकल तो ये हो गया कि योग कहते हैं तो सिर्फ आसन ही दिखते हैं सबको, कि कुछ खड़े होके एक पैर पे खड़े हो गए या टेढ़े मेढ़े कुछ घूम गए तो ये योग अभ्यास हो गया. आसन बहुत इम्पोर्टेंट अंग है, बट आसन सिर्फ एक चीज नहीं है. सो योग में जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा है कि अष्टांग योग है, 8 अंग है योग के. तो आसन तो थर्ड स्टेप है योग में. इट स्टार्ट्स विथ यम और नियम. अभी यम और नियम, यम कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय. ये हमें लगता है अरे ये तो मॉरल प्रिंसिपल्स है. आजकल की दुनिया में कहाँ ये सब पॉसिबल है, इतना सारा करप्शन है, अगर सच बोलेंगे तो लोग हमें यूज कर लेंगे. ये बाहर के लोगों के लिए है ही नहीं. एक्चुअली जब ट्रांसलेट करते हैं ना योगा की टेक्स्ट, लोग लिखते हैं यमास एंड नियमास आर द एथिकल मॉरल प्रिंसिपल्स. यमास और नियमास हमें खुद से अलाइन करने के लिए प्रिंसिपल्स है. जो कॉस्मिक प्रिंसिपल्स है उसके साथ हमें खुद से अलाइन होने की बात है. द सेकेंड पर्सन कम्स लेटर, इट इज फर्स्ट अबाउट व्हाट यू डू विथ योर सिस्टम. तो दीज आर लाइक द स्टेपिंग स्टोन्स. बट अगेन वाइल हम इसकी बात कर रहे हैं, इतना દોડાઈ ગયું છે આપણું મન, એવું કહીએ ને કે એટલું બધું અશુદ્ધિ ઓલરેડી છે. ફર્સ્ટ સ્ટેપ વુડ બી ટુ ટેક યોર માઇન્ડ
टुवर्ड्स सत्व, तब जाके आपको यमस और नियमस का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। नहीं तो सब चलता है। आजकल योग में भी तो कितना डिस्टॉर्शंस है। डांस, गरबा योगा, डांस योगा, बियर योगा, उल्टा होके योगा, ये सब गिमिक्स की क्यों जरूरत पड़ती है? माइंड को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज वो होलिस्टिक अप्रोच नहीं है, वो सत्व बेस नहीं है। तो ये सिर्फ धार्मिक बात नहीं है, ये अपना ही खुद का हायर पोटेंशियल ओपन अप करने की बात है। तो मेरे स्टूडियो पे भी अवॉइड ऑल ऑफ दिस गिमिक्स। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि मैम थोड़ा इंटरेस्टिंग करो, म्यूजिक बजाते हैं। क्या होता है, म्यूजिक बजाने के साथ आपका ब्रेन अवेयरनेस जो खुद पे होना चाहिए वो कहीं और चला गया। ब्रेन वेव्स का फ्रीक्वेंसी बदल गया, हमको जाना है अल्फा स्टेट में, हम खींच के जाते हैं बीटा स्टेट में, फ्रीक्वेंसी में। ये सब नॉर्मली नहीं पता चलता, बट सस्टेन्ड प्रैक्टिस में आपको फर्क पता चलेगा, आपके लाइफ के फीलिंग में आपको पता चलेगा। फिर छोटी छोटी चीजें, इमोशंस, रिलेशन आपको नहीं हिला सकते। तो ये स्ट्रेंथ कब आता है? जब अवेयरनेस अंदर की ओर जाए। तो जैसे हमने देखा, आसन की बात करते हैं अभी, यमा नियमा फिर आसन। तो आसन, अभी हम हॉर्मोन्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। आसन का फलक या सारे अंग का फलक बहुत बड़ा है, बट वी विल टॉक राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ आवर टॉपिक। तो asanas करने से what are you doing? You are releasing the stress that is built up in your joints, in your tissues, in your organs. तो जैसे अगर मेरा नेक में बहुत टेंशन है, बहुत स्टिफ है, दिस इज एक्चुअली रिड्यूसिंग द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। सो हैविंग अ अजाइल बॉडी enables a good circulation। किस चीज का? सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन नहीं, प्राण का सर्कुलेशन, एंड एट therefore affecting the circulation or the release of appropriate hormones in a good quantity। एंड जैसे शुद्धि का बात पुनीता जी ने किया था, इन अ गुड क्वालिटी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आसना इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। फिर आते हैं प्राणायाम। अपनी ब्रेथ का पावर कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। वेरी कॉमनली और स्पेशली कोविड के टाइम के बाद बहुत सारे लोग आ रहे हैं एंजाइटी से, डिप्रेशन के साथ। तो इसमें अलग अलग प्राणायाम, सांसों को कैसे रेगुलेट करना है, कुछ बंधास लगते हैं, कुछ कुंभक लगते हैं। तो ये सब चीजें अपने इमोशनल बैलेंस के लिए बहुत 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 हेल्प करते हैं। एंड इमोशंस एक्चुअली गवर्न द हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स गवर्न द इमोशंस। तो ये साइकिल में से हमें बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाता है प्राणायाम। मैं सबको बहुत शॉर्ट में ले रही हूँ बिकॉज वी डोंट वांट टू रन ओवर टाइम। प्रत्याहार अगर आपने सुना है, जैसे बहुत लोगों ने, अभी बहुत फेमस है विपश्यना। तो प्रत्याहार क्या है कि अपने जो भी सेंसेस है, यू आर सीइंग द वर्ल्ड, यू आर लिसनिंग, फीलिंग, टेस्टिंग, सारे जो सेंसेस का जो प्राण का जो व्यय हो रहा है बाहर की ओर, उसको विड्रॉ करना है। जैसे एक टॉर्टोइज अपने शेल में चला जाता है। द मोमेंट यू मूव इनटू अ प्रत्याहार प्रैक्टिस, आपके सेंसेस के ऊपर आपका कंट्रोल होगा, विच मीन्स आपके डिजायर्स के ऊपर स्लोली स्लोली आपका कंट्रोल आता जाएगा। और ये आता जाएगा तो एक्सपेक्टेशंस की वजह से जो इम्बैलेंसेस होते हैं वो कम होते जाएंगे। तो ये सब हमें लगता है कि अरे ये ध्यान व्यान करने का तो 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद करेंगे। नो, दीज आर द मैनुअल्स टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, टू द हैप्पीएस्ट। तो और हैप्पीनेस से ढूंढ रहे हैं ना हम सब, किसी को भी देख लो, क्या ढूंढ रहे हैं हम लाइफ में? शांति और हैप्पीनेस। एंड देन कम्स द प्रैक्टिस ऑफ धारणा, इंटेंसली बीइंग एबल टू फोकस। उसमें बहुत सारे एड्स है, मदद लेते हैं बहुत सारी चीजों की। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मंत्र ले लिया, तो ये मंत्र मैंने जो भी लिया है, इट डज नॉट मैटर कि मैंने ये भगवान का मंत्र लिया, वो भगवान का मंत्र लिया। मंत्रस इन इटसेल्फ विदाउट इवन द मीनिंग कैरी अ एनर्जी सिग्नेचर, वेरी पावरफुल एनर्जी सिग्नेचर। तो हर एक मंत्र का एक अपना फ्रीक्वेंसी है और वो फ्रीक्वेंसी अमुक तरीके से हमारे ऊपर काम करता है। तो बार बार वही मंत्र चैंट करते करते ऑटो सजेशन देते हैं हम अपने माइंड को, एंड वी ब्रिंग इट इनटू अ स्टेट वेयर द मंत्र इज इंटेंडिंग इट टू ब्रिंग। तो ये है जैसे विजुअलाइजेशन। अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हैं,
ये बहुत आजकल हम कर रहे हैं क्योंकि द वर्ल्ड इज चेंजिंग, बट इमेजिन कि ये स्क्रीन की जगह आप पहाड़ों में कहीं बैठे हैं, सिर्फ आपने इमेजिन भी कर लिया तो आपको अच्छा फील हो जाएगा. योर ब्रेन डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रियल एंड द वर्चुअल. तो विजुअलाइजेशंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट विजुअलाइज योर सेल्फ इन अ स्टेट वेयर यू वांट योर सेल्फ टू बी. दैट चेंजेस द ब्रेन केमिस्ट्री. जैसे कभी कभी सपनों में कुछ खराब सपना है, हम उठ जाते हैं, पसीना हो जाता है. पसीना कैसे हो गया? सपना तो इमेजिनरी था ना, रियल में तो हुआ भी नहीं था. पर ब्रेन ये नहीं समझता, उसको रियल ही लगता है. तो फिजियोलॉजी सीधा चेंज होता है सिर्फ इमेजिनेशन से. then use it for our good, no? Change your physiology with a good visualization. तो ये सब चीजें हैं. हम डेफिनेटली आज ध्यान और समाधि अवस्था के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं. दीज आर एटलीस्ट पहले ये बेसिक स्टेप्स हमारे लाइफ में. थोड़ा सा शुद्धि, थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज, और इतना बिग डील नहीं है. कर पाए उतना ही है. वी थिंक वी आर बाउंड, वी आर नॉट. ह्यूमन बीइंग्स है हम, एनिमल्स नहीं है. पशु ना होके मनुष्य होने का सुपर पावर यही है कि यू ऑलवेज हैव अ चॉइस. इन एवरी मोमेंट यू हैव अ चॉइस. सो आई वुड जस्ट से दैट यूज दैट सुपर पावर एंड स्टे हैप्पी, स्टे पावरफुल. Thank you. Very nice lecture by Mauli. Simple 7 steps and a brief knowledge of yoga for the hormones through different subjects. और also छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी हमको पता है, पर कभी कभार we need somebody to say these things and then वो freshen up हो जाता है. तो we all want to live a good life. Thank you, Mauli, for joining us. Thank you very much. ओके सो हम लोग आगे बढ़ेंगे. अभी हमारे 2 स्पीकर्स तो हो गए हैं एंड वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, बट वी डोंट वांट टू मिस द क्वेश्चन आंसर. तो ऑलरेडी क्वेश्चंस आ गए हैं. हिनल, कैन यू जस्ट रेज लाइक वन और थोड़ी क्वेश्चन ही लेंगे हम, एक एक ले लेते हैं अभी और फिर आई विल जस्ट गिव इट टू द ज़ील फॉर द गेम्स. तो हमारे जो स्पीकर है वो बहुत ही फास्ट हमें आंसर देंगे इसके. हिनल, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes. So first of all, happy Women's Day to everyone in advance. Myself, Hinal Thakkar. तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं स्पीकर्स के लिए. सबसे पहले पुनीता मैम, मैं आपसे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. तो जैसे कि आपने बताया कि पीरियड्स में और जो हमारा वो टाइम होता है रजस वाला, उस टाइम पे हम लोग बहुत सारी गलतियां बचपन से ही करते आए हैं. एक और भी छोटी सी गलती बहुत सारे लोग कर देते हैं, जैसे कि कुछ कहीं जाना है, कुछ सोशल अटेंड करना है, तो पीरियड्स को डिले करने के लिए हम लोग वो पिल्स ले लेते हैं. तो वो पिल्स किस हद तक हमारे लिए खराब है, और क्या वो पिल्स लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? एंड उस टाइम पे आपने बताया कि डाइट इज रियली इम्पोर्टेंट. तो जब हमारा रजस वाला टाइम चल रहा है तब हमें किस टाइप का डाइट लेना चाहिए? पुनीता मैम, आप अभी म्यूट हो. ओके हाँ. ओ वीडियो जतो रे मारो. यस. ओके ओके ओके. हाँ जी. जो आपने जो प्रश्न पूछा बहुत अच्छा क्वेश्चन है. जो आज के युग के अंदर जो हार्मोन्स की ये पिल्स ले रहे हैं डिले मेंसेस के लिए,
तो कभी हमने ये सोचा है कि आज हम चाहते तो अपना लीवर की जो फिजियोलॉजी है वो स्लो कर दे, अपनी जो आज हमें कहीं बाहर जाना है तो हम ऐसा सोचते हैं कि भाई हमें 15-20 घंटे के लिए यूरिन पास आउट के लिए नहीं जाना पड़े, तो हम ये सब चीजें हम नहीं रोक सकते हैं, राइट। शरीर की जो फिजियोलॉजी जो है वो अपने आप चलती रहती है, वैसे ही इसीलिए वैसे ही ये ऋतु चक्र बोला है, वैसे ही पीरियडिक साइकिल उसको कहा गया है, तो वो भी अपने हिसाब से चलते रहना चाहिए। अगर उसी के अंदर जो डिस्टरबेंस आ जाएगा तो वो साइकिल में अगेन वो फॉलिकल जो डिले मेंसिस की वजह से वो फॉलिकल्स की वजह के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके अंदर मुश्किल आ जाएगी, और वो फिर डिले मेंसिस की वजह से वो जो हार्मोन्स और बिगड़ते जाएंगे, और जो पॉलीसिस्टिक ओवरियर डिसीज में कन्वर्ट होते जाएंगे धीरे धीरे, बिकॉज हार्मोन इम्बैलेंस और इससे होते जाते हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए कि डिले पीरियड्स के लिए कभी भी जरूरत न हो तो कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज ये हमारे हमारे अंदर शरीर के अंदर के हार्मोन्स और जो इम्बैलेंस करते हैं। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन है रजस्वला परिचर्या के अंदर क्या खाना चाहिए, तो रजस्वला परिचर्या के अंदर अगेन मैंने बताया कि सारी जो डेयरी प्रोडक्ट है वो बंद करनी चाहिए। अगेन पर उसके अंदर भी एक है कि जो लड़की पतली है, जो वातल प्रकृति की है, उसको दूध देना चाहिए, बिकॉज वो अगर मिल्क पिएगी तो उसके अंदर वो पोषण मिलेगा, तो उसकी जो साइकिल है उसके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज पोषण की कमी के कारण भी स्कैंटी मेंसेस आता है। तो एक ये कारण है। दूसरा कारण है डेयरी प्रोडक्ट, जैसे चीज ले लिया, आइसक्रीम ले लिया, केक, पेस्ट्री, ये सब नहीं खाना चाहिए। उस दौरान लड़की को मूंगफली का ज्यादा सेवन करना चाहिए, गाय का घी का सेवन ज्यादा करना चाहिए, और थोड़ा बहुत जैसे घी और दूध पीना चाहिए। अगर ऐसा पित्त प्रकृति भी हो तो भी थोड़ा बहुत मिल्क ले सकती है, और हल्का भोजन खाना चाहिए, लाइट डाइट खाना चाहिए, ज्यादा तेज मसाले वाला खुराक नहीं खाना चाहिए, और सिंपल ये बस ये फॉलो करना चाहिए। और थैंक यू सो मच। ये एक रजस्वला, मेनोपॉज और फीमेल हार्मोन्स एक ऐसी चीज है कि जो हर एक फीमेल के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो क्वेश्चंस तो हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं। एक मौली मैम के लिए भी हमारे पास एक क्वेश्चंस है। तो मौली जी, जैसे आपने बताया कि 7 थिंग्स आर देयर टू टेक केयर, तो उसमें बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी लाइफस्टाइल तो चेंज नहीं कर रहे, सब कुछ खराब खराब जो भी आपने बताया वो कर लेते हैं, और सिर्फ अगर हम योगा करें तो क्या वो इनफ है? हम्म, योगा इनफ है अगर योग को समझ के ठीक से किया तो। हाँ, योगा को सिर्फ आसन समझ के किया तो लगेगा कि इनफ नहीं है। पर जैसे मैंने मन को अगर सत्व की ओर लेके जाते हो तो आपका डाइट ऑटोमेटिकली सात्विक क्यों होगा कि आपको मन ही नहीं होगा। ये जो जंक फूड है दैट इज ऑल्सो हार्मोनल, एक क्रेविंग होता है कि आज तो बर्गर खाना ही है या पिज्जा या वट एवर इज द। तो ये क्रेविंग क्यों होता है जब हॉर्मोन्स हिल जाते हैं? वो क्यों होता है? क्योंकि मन स्थिर नहीं है। तो योग अभ्यास मन को स्थिर करेगा तो डाइट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर हमारा एक पॉइंट था कैफीन और क्या था, और शुगर और वो सब। अगेन दीज आर क्रेविंग्स, क्योंकि हमको एक किक मिलता है, ये वर्ड यूज करते हैं ना कैफीन से, कि वो किक क्यों मिलता है? क्योंकि अंदर से जो हार्मोन रिलीज होना चाहिए उसके लिए डोपामिन, वो नहीं हो रहा है या फिर कम हो रहा है, या फिर आप इतना आदत है कि बाहर से उसको प्रोवाइड करो कि बॉडी बनाना बंद कर देता है। So when you are in a regular yogic practice, all these hormones come in a balance, all these chemicals are secreted in a balance. You won't feel like having these things. तो ये मुझे कभी कभी लोग, अरे आप योगा करते हैं तो आप तो ग्रीन टी ही पीते होंगे, आप चाय नहीं पीते। नहीं, चाय हम जरूर पीते हैं, पर चाय का क्रेविंग नहीं होता है कि हाँ ये ही चाहिए सुबह उठ के, नहीं तो मेरा दिन शुरू नहीं होगा। नो, दैट डजंट हैपन। तो योग में एक ये है कि बैलेंस चाहिए। एकदम से मतलब जबरदस्ती से किसी चीज को छोड़ना ये नहीं है, वो खुद से अपने आप छूट जाए। ये महामृत्युंजय मंत्र भी यही बताता है, उर्वारुकमेव बंधना। ठीक है, उसमें नहीं जाते। फिर क्या था हमारा, वॉक है, फिर वी टॉक्ट अबाउट स्लीप। योग में ही एक क्रिया है योग निद्रा।
जागृत अवस्था में कैसे सुषुप्त अवस्था का एक्सेस मिलता है, और while being alert awake how can you be so calm and peaceful and creative. तो हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि योग वैसे तो इनफ है, ये 7 स्टेप्स इसी के अंदर आ जाएंगे अगर अच्छे टीचर के पास अच्छा समझ के साथ योग को लाइफ में अगर लाते हैं साधना की तरह। योगा फॉर वेट लॉस ऐसे नहीं लेना है योगा को। योगा एक जीवन जीने का तरीका है, एंड इफ यू अप्रोच योग इन दैट वे देन डेफिनेटली इट इज मोर देन इनफ। Okay, And thank you so much. Hinal, because we are running out of time, I could see you shared me कि बहुत questions भी है. To all the people who are here, maybe you can share पुनीता बेन का और मेरा email address या IYA का कुछ contact. Yes, yes. So we That's what are happy to answer the questions, but we might need to wrap up the session. Yes. So हम लोग ये वीडियो जो है हमारा वो YouTube पे एंड हमारे Facebook पेज पे अपलोड कर रहे हैं. सो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है आप लोग प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं. सो हम लोग आपका वहां पे आंसर करेंगे, और एल्स वी कैन मेक अनदर वीडियो जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे. सो प्लीज आप लोग अपने सारे क्वेश्चंस को हमारे कमेंट बॉक्स में डाल देना. यूट्यूब पे हमारा यूट्यूब का जो आईडी है दैट इज IYA गुजरात, एंड हमारा फेसबुक पेज भी है. सो आप वहां पे भी हमें क्वेश्चंस डाल सकते हैं. थैंक यू सो मच पुनीता मैम एंड मौली बाविस्कर फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड स्पीच. इसकी एक्चुअली हर एक फीमेल को बहुत जरूरत है नाउ डेज. सो अभी थोड़ा फन एंड एंटरटेनमेंट करते हैं. सो वी हैव जिल पटेल, सेक्रेटरी ऑफ रोटरी क्लब. सो वो हमारे साथ थोड़ा फन गेम्स एंड ऑल करेंगे. सो आई वुड लाइक टू वेलकम जिल. Yes, thank you very much, Hinal. Zil has done this beautiful our connection with Rotaract, and she is a very young dynamic girl and very active with the Rotaract club and doing so many activities. You know, you can see her. She is bubbly and इतनी लाइव है कि आपको मजा आ जाएगा. और अभी हमारे साथ जितने जुड़े हैं प्लीज डू टेक पार्ट. आपका अभी योगा का जो नॉलेज है वो अभी बाहर निकालने की जरूरत पड़ेगी. सो आई वेलकम जी. ओके, हेलो एवरीवन. सो हमने आज बहुत सारा कुछ समझा आयुर्वेद और योग के बारे में. तो अभी हम योग की ही गेम्स लेके आए हैं जिसमें आप जो रूटीन में योग करते हो या योग के बारे में जो नॉलेज है यहाँ पे वो हम एक्सप्लोर करेंगे. तो हम पहले रूल्स समझ लेते हैं कि हमें कैसे करना है. पहले तो मैं एक यहाँ पे पोस्चर और कोई भी क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे शो करेगा स्क्रीन पे. तो आपको चैट बॉक्स में आंसर करना है. जो सबसे पहले आंसर कर देगा आपको बहुत कम टाइम मिलेगा सोचने का. विद इन सेकेंड आपको आंसर करना है. तो आपका चैट बॉक्स और टाइपिंग का रेडी रखेगा और तुरंत ही आपको आंसर देना है. कोई भी आसन का नाम है या फिर कोई भी मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे और उसमें ऑप्शन दिए होंगे वो आपको आंसर करने हैं. तो वो चैट बॉक्स में सबसे पहले जो लिखेगा वो विनर होगा. सो हम अपने अभी स्टार्ट करते हैं. जस्ट अ मिनट. विजिबल है, आपको दिख रहा है? यस, किसी का आंसर भी आ गया है, आप देख नहीं, अभी हम स्टार्ट करेंगे. अभी तो जस्ट हम सब ये रेडी कर रहे हैं. फुल स्क्रीन दिख रहा है? Zeel, this is visible. You can go ahead. Okay. Everything is perfect. Yes. तो जस्ट अ मिनट, मैं चैट बॉक्स खोल लेती हूँ पहले. हम जब स्टार्ट करेंगे तभी से गेम स्टार्ट होगा. सो सबसे पहला है. Announce the name of the person who is giving the first answer, okay? हाँ भक्ति मैम, आप ये देख लीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं दोनों काम एक साइड से करूंगी तो फिर वो. Okay. थैंक यू.
ठीक है, फर्स्ट ये है कि ये कौन सी मुद्रा है जो हम रूटीन में हर रोज यूज करते हैं जब ध्यान करते हैं। दीप्तिबेन ने आंसर दे दिया है, रुचि ने आंसर दे दिया है, ज्ञान मुद्रा। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट है, जस्ट अ मिनट, प्लीज चेंज द स्लाइड। यस यस यस, होल्ड इट, यही सही कर लेते हैं। थर्ड, यस यस, व्हाट डज नमस्ते मीन? इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। दिख रहा है ना सबको? तो आंसर आ गया है हेमा, बिकॉज नाम नहीं लिखे हैं सब लोगों ने, तो आंसर है ए, फर्स्ट जो है ए, वो है आंसर। यस यस, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके बाद है यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो कौन सा आसन है? फटाफट क्विक आंसर कौन दे रहा है? बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं, एक सेकंड में आंसर आ जाते हैं। यस, So, तो लगता है हम सब यहाँ पे योगी है। तो उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ योगा? इसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। शांति, हेमाक्षी सबने सही आंसर्स दिए हैं। याश्वी, स्पिरिचुअल यूनियन, यस, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके बाद है, हम एक पोस्चर देख रहे हैं, वो कौन सा आसन है? अच्छा, हेमाक्षी, फर्स्ट पर्सन टू गिव द आंसर। यस, पर्वतासन। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन हेमांशी। फिर है, विच ऑफ दिस इज नॉट द नेम ऑफ वन ऑफ द 7 चक्रास? इसमें से कौन है जिसमें नाम नहीं है चक्रों का? HM है, पता नहीं उसका नाम क्या है, पर उसने सही जवाब दिया है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड एक्चुअली सब लोग सही जवाब देते हैं। अभी तो मुझे पर इसमें उसमें भक्ति मैम जो पहले देगा वही विनर है, तो इसमें वही है, माइंड का, अपना चित्त, अपना मन अभी हमें यहाँ पे लगाना है कि कितना 100%। ट्रू, एब्सोल्युटली, ब्यूटीफुल। हाँ, ये पोस्चर जो हमें रोज करना चाहिए। मुलासान, या यस बहन, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। निमिषा, यस, उष्ण पान करने के बाद तुरंत हमें ये आसन करना चाहिए, मलासन। अच्छा, उष्णपान बताओ जरा इस संस्कृत की लैंग्वेज में से थोड़ी हमारी लैंग्वेज में। उष्णपान यानी वार्म वाटर, लुक वार्म वाटर आपको पीना है सुबह उठ के। हम जो पानी नहीं पीते, तुरंत पेट साफ करने जाते, वो अच्छी आदत नहीं है। पेट साफ करना है तो पहले आपको गर्म पानी पीना है, उसके बाद इस पोस्चर में बैठना है, और उसके बाद आपका पेट अच्छे से साफ होगा। ओके, हम नेक्स्ट पे जाते हैं। यस, यस, हेमाक्षी, रुचि, दीप्ति बहन, भक्ति मैम आप आसन का नाम भी बोलते जाइए आंसर, सो दैट सबको पता चले। त्रिकोणासना। यस, परफेक्ट। इसके बाद है यह एक आसन है जो खाने के बाद हम करते हैं, ये केवल एक लौता आसन है। माय फेवरेट। यस यस, वज्रासन। और हाँ, और अभी तो जिसके घुटनों का प्रॉब्लम है, जिसको नहीं है, वो ये करेगी तो आगे होगा भी नहीं घुटनों का प्रॉब्लम। सो यस, नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार में टोटल कितने आसन नंबर होते हैं? जवाब दिया है 12। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन। आई लव, हम सब लोग को अच्छा लगता है सूर्य नमस्कार करना। यस, उसके बाद है ये जो पैरों का जो पोस्चर है, कौन सा आसन है उसमें? पद्मासन, हेमाक्षी ने जवाब दिया है पद्मासन। कॉन्ग्रेचुलेशन। पद्मासन। यस, अभी ये जो पोस्चर किया है उसको संस्कृत में जो आसन का नाम दिया है वो बताना है। हेमाक्षी बी, यस, नहीं, पवन मुक्तासन चल रहा है अभी। किसी ने अगली स्लाइड का, अच्छा है, यू नीड टू चेंज द स्लाइड।
नो पवन मुक्तासन चल रहा है, वो शांति जी यस ने यस जवाब दिया। यस हाँ। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हम ये मैंने क्यों डाला है, क्योंकि हम जब भी आसन करते हैं तो हम इंग्लिश जो पोस्चर के नाम है ना वो लेते हुए हम इस, क्योंकि यही आसन के जो नाम है उसकी वो कुछ उसका साइंटिफिक है, तभी उस आसन का नाम इसमें दिया है। तो हम अब जाके जैसे बटरफ्लाई बोलते हैं तो उसको भद्रासन बोलते हैं, तो वो हम चीजें यूज करें तो अच्छा है। ओके, नेक्स्ट में जाते हैं। ये शांति ने दे दिया ऑलरेडी ये इसका जवाब, चक्रासन। कॉन्ग्रेचुलेशन, चक्रासन। उसके बाद है ये जवाब नहीं आ रहा है, सत्पर रजस तमस आ गया है जवाब। नहीं, इसमें पूछा है व्हाट इज नॉट द 3 गुणास। हाँ, ट्विस्ट किया है। यस, वही तो मैं बोल रही हूँ। आपका मन, आपका शरीर और श्वास सभी इसमें अभी कॉन्सेंट्रेट करना है। हाँ, एकाग्र। एकाग्र, यस, इसमें आंसर भी था एकाग्र, मैंने जो बोला। अभी इसके बाद है ये वाला, ये कौन सा पोस्चर है? हाँ, गोमुखासन है, शांति ने दे दिया जवाब। ओके, दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन शांति। इसके बाद ये है सबसे इम्पोर्टेंट, योग में गुरु का महत्व क्यों है, इसमें फिर क्या रोल है गुरु का? शांति ने ए जवाब है, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन, आंसर इज राइट। यस। इसके बाद है ये आसन का नाम वृक्षासन है, ट्विंकल ने जी दिया है जवाब। यस, सबसे अच्छा एकाग्रता के लिए वृक्षासन बोलते हैं इसको। यस। अभी इसका आंसर क्या है? अष्टवक्र समाधि, शांति ने अगेन जवाब दे दिया है ए, भुजंगासन। यस। इसके बाद ये कौन सा आसन है? अच्छा, शांति आगे जा रही है तू। हाँ मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। वही तो है, कंफ्यूज नहीं होना है, दिल दिमाग तो इधर रखना है। मैं चैट पढ़ रही हूँ और स्लाइड नहीं दिख रही है मुझे। हाँ, तो थोड़ा टाइम दीजिए भक्ति मैम को देखने का। यस, धनुरासन, यस, राइट आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके बाद है ये कर्म योगा इज अ ब्रांच ऑफ योगा बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ विच टेक्स्ट? आंसर बी है, भगवद गीता। भगवत गीता। ओके, तो थैंक यू। आई होप आप सबको बहुत मजा आया होगा। तो थोड़ा आपका ब्रीफ अप भी हो गया होगा योगा के बारे में और ये सब। Jill, can you remove the slides? Yes, just a minute. Thank you everyone. Thank you भी ज्वाइन किया है। बहुत मजा आया, एकदम entertaining था। Thank you very much. Yes. And we wrap up the session with one small exercise of 2 minutes or maybe less than that. I will ask everybody to join me. सुनाई देता है बराबर? Clear? Okay. So I have a short exercise of 1 or 2 minutes. I have affirmations from Bob Baker. So हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जैसे मौली ने बताया कि it is very important to be positive, but at the same time we don't need to hide or suppress our other feelings. उसको भी थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट करते जाना है और धीरे धीरे हमारे फीलिंग्स को कन्वर्ट करते जाना है. We need to believe in ourselves, what we are doing. क्योंकि अगर आप मुझे यहाँ देख रहे हैं ऐसे बोलते हुए, तो that is my belief and that is the change happened in me. So let's start. हम लोग 3 बार रिपीट करेंगे. 10 affirmations मैंने निकाले हैं. Ready? I am grateful for the many blessings in my life. 3 बार रिपीट करेंगे. I am grateful
for the many blessings in my life. I am grateful for the many blessings in my life. Today, I look for and appreciate the good. Today, I look for and appreciate the good. Today, I look for and appreciate the good. I welcome joy in my life. I welcome joy in my life. I welcome joy in my life. और जब बोलते तो महसूस करना है, इसको फील करना है जैसे वो हो रहा है. I am in tune with the abundant nature of the universe. Universe तो abundant में देता है, right? Sunlight बोलता है कि आज मैं कम दूंगा, आज मैं नहीं बाहर आऊंगा. No, universe is always in abundant. So I am in tune with the abundant nature of the universe. I am in tune with the abundant nature of the universe. Money comes to me in expected and unexpected ways. Money comes to me in expected and unexpected ways. Money comes to me in expected and unexpected ways. My body knows what's best for my health and well-being. My body knows what is best for my health and my well-being. My body knows what is best for my health and my well-being. I attract the perfect people at the right time. I attract the perfect people at the right time. I attract the perfect people at the right time. I attract the perfect people at the right time. I deserve happiness and success. I deserve happiness and success. I deserve happiness and success. Something wonderful is always on the verge of happening. Something wonderful is always on the verge of happening. Something wonderful is always on the verge of happening. And last, very powerful, I am worthy, I am enough. I am worthy, I am enough. Say it from your heart. I am worthy, I am enough. Thank you very much. Hope you all have enjoyed this session as much as I have. And we end the session with a vote of thanks by Hinal. Thank you so much for joining this session. First of all, I would like to thank Punita ma'am, Mauli ji, Bhakti ji, and Zil for entertaining us, for giving us a good knowledge. Then I would like to thank Rotary Club for this good initiative, and President Dhruv Shakuni and Secretary Zil Patel for taking this initiative and encouraging you all to attend this beautiful session. Thank you so much. अगर आप लोगों को ऐसे और सेशंस अटेंड करने हैं, ऐसा और नॉलेज चाहिए, अपने क्वेश्चंस के डाउट सॉल्व करने हैं, तो आप लोग हमारे साथ अगेन एंड अगेन जुड़ सकते हैं. IYE इंडियन योग एसोसिएशन की एक हमारी मेंबरशिप है. 3 अलग अलग तरीके की मेंबरशिप है. जो हमारी फर्स्ट बेसिक मेंबरशिप है, दैट स्टार्ट विथ जस्ट 250 रुपीज.
सो उसमें हम लोग ऐसे जो भी आगे सेशंस करेंगे उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप लोगों के पास भी अगर कुछ है शेयर करने के लिए तो आप हमारे साथ एज ए वॉलंटियर जुड़ के लोगों को ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेशंस नॉलेज शेयर करने के लिए प्रोग्राम्स अरेंज कर सकते हो। ऑल्सो हमारे ई न्यूज लेटर्स होते हैं जो हम लोग पोस्ट करते हैं एवरी 2 मंथ्स, वो भी आप लोगों को मिलेगा। एंड और भी बहुत सारे बेनिफिट है जो आपके सेक्रेटरी है जिल पटेल वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो मेंबरशिप डिफरेंट है एंड उसके बेनिफिट्स है वो। तो अगर आप लोग चाहते हो मेंबर बनना तो प्लीज कॉन्टेक्ट जिल. She will definitely help you to be a member, to be a part of Indian Yoga Association Gujarat chapter. So thank you so much and wishing you all a happy Women's Day in advance. Thank you for joining us. Thank you. And I would request Mauli for one mantra, ending prayer from her beautiful voice. Okay. One Thanks, Patwin. 1 minute. Please. I'll spotlight you. नमस्कार मुद्रा में आएंगे, आंखें बंद. We will do a very simple Shanti mantra, Om Purnamadaha. You can repeat with me or simply receive the mantra. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Tat Sat. Thank you all. Thank you IYA for providing this wonderful platform. Thank you. Thank you, Mauli. Have a wonderful day and a beautiful week and life ahead. Thank you for joining us.